ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ 11ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಸಂಗಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಮೋ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಂಧ್ರದ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಥೀಮ್ ನಡಿ ಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಆರ್ಕೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಆರ್ಕೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 25,000 ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 108 ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 8 ಲಕ್ಷ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಆರ್ಕೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಮೋ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಂಧ್ರದ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೋಡಿ ಶ್ವಾಸ वदलतो तलानी कुड़ीवैपु तिप्पंडी. सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास तीसकुंटू साधारण स्थिति को रंडी. सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए. श्वास वदलतो तलानी एडमु वैपु तिप्पंडी. सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास तीसकुंटू साधारण स्थिति को रंडी. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए मरोकसारी చేయండి. और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. विश्रामम చేయండి. धीरे से सामान्य स्थिति में. अब हम गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे. नेक रोटेशन अभ्यासम చేద్దాం. धीरे से गर्दन को आगे की ओर झुकाइए. निधानंगा तला ముందుకు వంచండి. और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए. श्वास తీసుకుంటూ తలాని క్లాక్వైజ్ తిప్పండి. श्वास వదలుతూ తలాని కిందకి తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा ध्यान गर्दन पे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. और धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे. ఇప్పుడు विरुद्ध दिशाలో చేద్దాం. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి. विश्रामం చేయండి. अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे. शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం. श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए. श्वास వదలుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए. श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे. श्वास వదలుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे.
हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए एल्बोस चेस्ट ముందుకు తీసుకురండి धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి నిదానంగా ఇంకొకసారి अभ्यासम చేద్దాం धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం कमर में शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి చేతులను కిందకి తీసుకురండి अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें కాళ్ళను భుజ సమానంగా ఉంచండి हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए श्वास వదులుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे श्वास వదులుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लेफ्ट साइड घूमिए ఎడమ వైపు తిప్పండి और श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और చేతులను కిందకి తీసుకురండి अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు మాకాలు క్రియ చేద్దాం हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए हथेलियां नीचे रहे చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए कुर्सी जैसे बैठ जाइए श्वास వదులుతూ మాకాలు బెండు చేయండి చైరులాగా కూర్చోండి श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे మరొకసారి अभ्यासम చేద్దాం श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए और दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు యోగాసన అభ్యాసం ప్రారంభం చేద్దాం पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे మొదటిగా ताड़ासन अभ्यासम చేద్దాం दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना के रखिए రెండు కాళ్ళ మధ్య 2 అంగుళ స్పేస్ ఉంచండి दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి उंगलियों को आपस में फंसाइए చేతులు इंटरलॉक చేయండి हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए చేతులను బయట వైపు తిప్పండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి धीरे से एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास నిదానంగా హీల్స్ ని పైకి ఎత్తండి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉంచండి कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को हाथों को नीचे लेके आइए మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ చేతులను మరియు హీల్ను కిందకు తీసుకురండి సాధారణ స్థితిలో విశ్రాం कीजिए अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు पाद हस्तासन प्रैक्टिस చేద్దాం दोनों पैरों के बीच में 4 इंच का फासला रखें రెండు కాళ్ళ మధ్య 4 అంగుళంగా స్పేస్ ఉంచండి दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर उठाइए
శ్వాస తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके. మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి. दोनों हाथों को पैर के पास रखने का प्रयास. చేతులను కాళ్ళు పక్కన ఉంచండి. घुटने को सीधा रखने का प्रयास. మోకాలు నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ స్థితిలో కొంచెంసేపు ఉండండి. कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आइए. మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి రండి. శ్వాస వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए और विश्राम कीजिए. अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు अर्ध चक्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం. धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखे. చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए. श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక తీసుకొని వెళ్ళండి. ఈ స్థితిలో కళ్ళు తెరిచే ఉండాలి. ఈ స్థితి में आंखें खुले रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और हाथों को सामान्य स्थिति में रखिए. विश्राम कीजिए. చేతులను सामान्य స్థితిలో పెట్టండి. विश्राम చేయండి. अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు త్రికోణాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎవరికైనా మోకాలు యాంకల్లో నొప్పి ఆర్థరైటిస్ ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి. किसी को भी घुटनों में टखनों में दर्द है आर्थराइटिस से सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है. दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का फासला रखे. రెండు కాళ్ళ మధ్య 3 నుంచి 4 అడుగు స్పేస్ ఉంచండి. दोनों हाथों को कंधों के समान अंतर लेके आइए. చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి. दाएं पैर को राइट लेग को राइट साइड घुमाइए. కుడి కాలు కుడి వైపు తిప్పండి. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकिए. श्वास వదులుతూ మెల్లగా కుడి వైపు వంచండి. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें. కుడి చెయ్యి కుడి కాళ్ళు వెనక పెట్టండి. सिर को ऊपर घुमाइए और विशाल आकाश को देखिए. తల పైకి తిప్పండి. ఆకాశాన్ని చూడండి. ఈ స్థితి में कुछ देर बने रहिए. ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి. अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे. बाएं पैर से करेंगे. ఇప్పుడు ఎడమ కాలు ఎడమ వైపు తిప్పండి. అదే ప్రక్రియ చేయండి. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए और विशाल आकाश को देखने का प्रयास. కొంచెంసేపు ఉండండి. धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి. చేతులను కిందకి తీసుకురండి. दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए. अब हम बैठ के करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు మనం సిట్టింగ్ సిరీస్ ఆసన్ అభ్యాసం చేద్దాం. నిదానంగా కూర్చోండి. धीरे से बैठ जाइए. पैर को सामने की तरफ सीधा करें. కాళ్ళను నేరంగా పెట్టాలి. दोनों हाथों को नितंब के पास रखें. రెండు చేతులను నడుము పక్క పెట్టండి. कमर गर्दन सीधा रखे. शरीरम నేరంగా పెట్టండి. इसको दंडासन कहते हैं. ఇది దండాసనం. దండాసన్ నుంచి अब हम భద్రాసన్ का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు భద్రాసన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎవరికైనా మోకాలు యాంకల్ మరియు హిప్ జాయింట్ నొప్పి ఆర్థరైటిస్ ఉంటే సావధానంగా జాగృతంగా చేయాలి. किसी को भी टखनों में घुटनों में दर्द है हिप जॉइंट में दर्द है सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है. దండాసన్ की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए. దండాసన్ స్థితి నుంచి రెండు మోకాలు బెండు చేయండి. दोनों तलों को मिलाइए
पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए पादालु कलिपि पेट्टंडी चैतो पट्टुकोंडी घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास माकालु भूमि पैन पेट्टंडी ఈ అవస్థ में थोड़ी देर बने रहिए ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి यहां अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल्स में ताकत देता है धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए और पैरों को आगे फैलाइए నెమ్మదిగా చేతులు వదలండి కాళ్ళు నేరంగా పెట్టండి अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे किसी को भी घुटनों में टखनों में हिप जॉइंट में या सर्जरी हुआ है ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है ఎవరికైనా మాకాలు నొప్పి యాంకల్ నొప్పి ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి दंडासन नुंची पैरों को एक एक मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखिए काళ్ళు मड़ची नितंब किंदा पेट्टंडी एडिया बाहर और अंगूठे मिले हुए होना है हील्स बैठ के ఉండాలి टोस కలిపి ఉండాలి दोनों एडियों के बीच में बैठने का प्रयास రెండు हील्स मध्य కూర్చోండి दोनों हाथों को